Healthy morning, students. Let us start from question 14 of chapter 15, which is probability. Let us read the question first. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color, a face card, a red face card, the jack of heart, spade, and the queen of diamonds. First of all, let us understand about the cards. Say, such kind of the symbol shown on the card, if it is this kind, that is called diamond. Total 13 cards are there which are red in color and are of diamond. There are 13 cards of heart, 13 card of spade, and 13 card of club. Let us understand about it. Say, this symbol is of spade. There are 13 card of spade. They are from इक्का, which is also called एस, दूरी, तीरी, चौका, पंचा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नौवा, दस्सा. फिर 11 नंबर का कार्ड नहीं होता है, वो होता है जैक. दिस इज कॉल्ड जैक, क्वीन एंड किंग. So total 13 cards are there which are called club card, spade card, from ikka to king. This symbol is of heart. It is also from ikka to king. It is club card, ikka to king. And it is, this is diamond card from ikka to king, and it is club card from ikka to king. Once again, it is spade, heart, diamond, and club. So there are 13 cards of each color. So total how many cards are there? 52. So 13 cards. Let us understand total how many red cards are there. See, these all cards which are having heart are red in color, and these all 13 cards which are having diamond are also of red in color. So total 13 plus 13, 26 red color cards are there. Same way, 13 cards of spade which are black in color, and these 13 cards are of club which are also black in color. So total 26 black color cards are there. See, same color cards are called suit. So total how many red suit we have? 26, and black suit also 26. These 13 and these 13. So these are about the different kind of cards. Red suit 26, black suit also 26. Now let us discuss about the face card or picture card. Face card are those cards on which face is printed. So they are 12. 4 king, 4 queen, and 4 jack. Let us see. See, these all are the picture card. Out of these, 4 are jack, 4 queen, and 4 king. So total how many picture card we have? 3, 6, 9, and 12. Now S, that means ikka. So total how many ikka we are having? 4. Check it out. 1, 2, 3, and 4. Now let us solve the sum. Here total trial will be total cards which are 52. We know before solving any sum we are writing formula of probability, which are number of trials upon total number of trials. First question is what? Getting a king of red color. Getting a king of red color. Let us check it out. See, these all are the card of king. Tell me, this king of what? It is king of spade. This is the symbol of spade. This is the king of heart, king of diamond, king of club. तो अब मुझे बताओ कि ये 4 किंग में से रेड कलर के कितने किंग्स हैं? 2. हार्ट का किंग
और क्लब का किंग। सो हियर नंबर ऑफ ट्रायल विल बी रेड कलर किंग विच आर 2 एंड total number of trial will be total cards which are 52. Let us solve this. 2 1s are 2 26 are, so 1 by 26 our answer. Next question is getting a face card. Okay, अभी मैंने समझाया फेस कार्ड दैट मीन पिक्चर कार्ड जिसके ऊपर फेसिस होते हैं. दे आर 12, 4 किंग, 4 क्वीन एंड 4 जैक. So total 12 face cards are there. So according to this formula, number of trial will be 12 and total number of trial will be total card 52. If I reduce these 2 6 to 26, I will get 6 upon 26. Again we can reduce 2 3s are 6 and 2 13s are 26. So 3 by 13 is our answer. Next is getting a red face card. Again as I explained, face card का मतलब वो कि जिसको फेसिस होते हैं. तो फेसिस मतलब किंग, क्वीन और जैक. लेकिन हमें सारे फेस कार्ड नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रेड फेस कार्ड चाहिए. जो देखते हैं ये सारे फेस कार्ड्स है. ठीक है, अब मुझे बताओ जैक में रेड कलर के कितने फेस कार्ड्स हैं? 2, हार्ट का जैक और डायमंड का जैक. क्वीन में कितने? 2, हार्ट की क्वीन, डायमंड की क्वीन. और किंग में अगेन 2, हार्ट का और डायमंड का. सो टोटल हाउ मेनी फेस कार्ड वी आर हैविंग रेड इन कलर? 3 + 3 6. सो 2 किंग, 2 क्वीन and 2 जैक. Total 6 red color face card we have. So your total number of trial will be 6 upon total number of trial. Total how many cards we have? 52. So 2 3s are 6 and 2 26 are 52. Next is getting the jack of heart. Okay, let us check it out. See, these all are the jack. This it is the jack of spade, jack of heart, jack of diamond and jack of club. लेकिन हमें सारे जैक कार्ड के बारे में नहीं चाहिए प्रोबेबिलिटी. वी वांट वी वांट हार्ट ऑफ जैक. तो मुझे बताओ ये जैक में हार्ट का जैक कौन सा? ये वाला. तो हार्ट के जैक कितने हुए? ओनली 1. So here number of trial will be 1 upon 52 total cards. So it is our answer. Next event E, getting a spade. देखो स्पेड, अब यहाँ लिखा हुआ नहीं है स्पेड. देखो ये स्पेड का सिंबल है. स्पेड का मतलब यहाँ लिखा हुआ नहीं है इन लोगों ने कि स्पेड इक्के का चाहिए, दूरी का, तीरी का, चौके का, किंग का, क्वीन का या जैक का. तो ये सारे के सारे स्पेड है, सारे के सारे स्पेड. अब वहाँ मेंशन नहीं किया कि स्पेड में इक्का चाहिए, दूरी चाहिए, तीरी चाहिए कि किंग चाहिए. तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सारे के सारे स्पेड कंसीडर करने पड़ेंगे. चेक इट आउट. हाउ मेनी स्पेड कार्ड्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. So total how many spade card we have? 13. So number of trial will be 13 upon total number of trial total cards. Reduce this. 13 ones are 13 and 13 14s 13 4s are 52. So 1 by 4 is our answer. Or if you want to convert in decimal, it will be 0.25. Next is getting the queen of diamond. Say, so event F will be getting the queen of diamond. ठीक है, अब चेक करते हैं. मुझे बताओ कि क्वीन टोटल कितने क्वीन होती है? करेक्ट 4. लेकिन हमें सारे क्वीन के बारे में नहीं पूछा गया है. वी वॉन्ट ओनली क्वीन ऑफ डायमंड. लेट अस चेक इट आउट. हाउ मेनी क्वीन ऑफ डायमंड आर देयर? सी दीज ऑल आर द क्वीन.
अब फिर से अब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बताओ क्वीन, ये सिंबल कौन सा है, स्पेड, सो इट इज क्वीन ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ डायमंड और क्वीन ऑफ क्लब। अब मुझे आप लोग बताओ कि हमें जो क्वीन चाहिए वो कौन सी क्वीन चाहिए, चेक इट आउट। वी वांट क्वीन ऑफ डायमंड ओनली, तो बताओ ये क्वीन में डायमंड की कितनी क्वीन है, ये वाली एक ही डायमंड की क्वीन है, उससे अलावा है कोई दूसरी डायमंड की क्वीन, नो। सो हियर टोटल क्वीन ऑफ डायमंड वी हैव ओनली 1, so number of trial will be 1 upon total number of trial it will be 52, so 1 upon 52 is our answer. Clear everybody? Let us move to next sum. Question number 15. See, 5 cards, the 10, jack, queen, king and ace of diamonds are well shuffled with their face downward. One card is then picked up at random. What is the probability that the card is the queen? If the queen is drawn and put aside, what is the probability that the second card picked up is an ace or a queen? So first of all, before starting this sum, we'll write the formula, which is number of trial upon total number of trial. First we'll write total ट्रायल, मतलब अब हमें ये लिखना है यहाँ पर कि टोटल कितने कार्ड में से हम सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है टोटल 5 कार्ड्स आते हैं। अब कौन से 5? 10, जैक, क्वीन, किंग और एस। नहीं, आप सोचोगे 10 तो है, 10 के तो 4 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, स्पेड, हार्ट, डायमंड और क्लब। वैसे जैक के भी 4 कार्ड होते, क्वीन के भी 4 होते, किंग के भी होते, एस के 4 होते, तो टोटल 5 कार्ड कैसे हुए? यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है ये सारे के सारे कार्ड हमें नहीं लेने हैं, हमें सिर्फ डायमंड के कार्ड लेने हैं। उसका मतलब हमें 10 सिर्फ डायमंड का लेना है, जैक सिर्फ डायमंड का, देखो 10 डायमंड का एक ही है, जैक वो भी डायमंड का एक ही है, क्वीन डायमंड का एक ही है और किंग डायमंड का एक ही है और एस मतलब इक्का वो भी डायमंड का एक ही है। तो टोटल ये 5 कार्ड हमें सिर्फ डायमंड के लेने हैं, तो हमारे पास टोटल ट्रायल कितने होंगे? 5 कार्ड्स। आगे बढ़े, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन? सो इवेंट ए विल बी द कार्ड इज द क्वीन। 5 कार्ड्स हमारे पास ये है, उसमें से हमें क्या ये 5 कार्ड्स दोनों 5 के 5 उल्टे रख दिए हैं। अब हमें एक कार्ड उठाना है, वो क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब मुझे बताओ ये 5 कार्ड में से क्वीन कितनी है? एक ही है, सो ये नंबर ऑफ ट्रायल विल बी 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल में हमें वो लिखना होता है कि टोटल कितने कार्ड में से हमने एक कार्ड उठाया है, तो टोटल कितने कार्ड है हमारे पास? 5, सो टोटल ट्रायल विल बी 5, सो आंसर विल बी 1/5 और 0.2. See, second question is asked, if the queen is drawn and put aside, what is the probability that the second card picked up is an ace and a queen? अभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। 5 कार्ड्स हमारे पास हैं, अब उसमें से एक कार्ड उठाना है और अगर वो क्वीन आती है तो साइड में रख देना है। फिर से एक बार, 5 कार्ड में से अगर क्वीन आती है तो साइड में रख देना है, क्वीन को अब हमें छूना नहीं है। अब क्वीन को हमने साइड में रख दिया तो कितने कार्ड बचे? 4 कार्ड। अब वो 4 कार्ड में से हमें सेकंड कार्ड उठाना है, ठीक है। तो अब जबकि हम 4 कार्ड में से कार्ड उठा रहे हैं, तो अब ध्यान रखना, अब हमारी टोटल ट्रायल चेंज हो जाएगी, 4 हो जाएगी। टोटल ट्रायल वो होता है कि जिसके टोटल में से आप वो ट्रायल ले रहे हो। तो हम सेकंड कार्ड 5 कार्ड में से पिकअप नहीं कर रहे हैं, हम 4 कार्ड में से पिकअप कर रहे हैं। सो टोटल ट्रायल विल बी 4। अब ये 4 कार्ड में से एस आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो अब हमारे पास जो 4 कार्ड बचे,
हमने क्वीन को तो साइड में रख दिया, तो 4 कार्ड में हमारा बचे हुए 10, जैक, किंग और एस। तो एस, किंग, जैक और 10 में एस हमारे पास है, इक्के कितना है, सिर्फ डायमंड का इक्का एक ही है। सो नंबर ऑफ ट्रायल 1 अपॉन टोटल ट्रायल। अब हमने क्वीन को तो साइड में रख दिया, अब हमारे पास कितने कार्ड है, 4। तो 4 कार्ड में से हमने जो सेकंड कार्ड चूज़ किया, ठीक है, वो कितने कार्ड में से हमने सिलेक्ट किया, 4 कार्ड में से। सो टोटल ट्रायल विल बी 4। ओके, नेक्स्ट इज, अब सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज अ क्वीन। क्यों ये सेकंड कार्ड लिखा हुआ है, क्योंकि पहला कार्ड पिक हमने किया तो क्वीन थी, जो हमने क्या, इन्होंने क्या बोला था, पहला कार्ड पिक करो, क्वीन आ रही है उसको साइड में रख दो, तो हमने साइड में रख दी। अब हमारे पास सिर्फ 4 ही कार्ड बचे, और 4 कार्ड में से सेकंड कार्ड हमें पिकअप करना है, और वो कौन सा है, होना चाहिए क्वीन। सो द इवेंट विल बी द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज अ क्वीन। लेकिन हमने पहली बार ही पिकअप किया था, क्वीन आ चुकी थी, हमने साइड में रख दिया था। अब हमारे पास सिर्फ 4 ही कार्ड बचे थे, कौन से, 10, जैक, किंग और एस। तो ये 4 में से क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जबकि ये 4 में से हमारे पास क्वीन तो है ही नहीं। तो उसका मतलब नंबर ऑफ ट्रायल क्या हो जाएगा, 0। और टोटल कितने कार्ड में से हमने पिकअप करना है, 4। सो हियर द आंसर विल बी 0। सो इट इज़ इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब पहली बार हमने 5 कार्ड में से पिकअप किया, ठीक है, क्वीन को साइड में रख दिया। अब बाकी 4 बचे, उसमें से और एक कार्ड सेकंड कार्ड पिकअप करना है, तो उसमें क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब 5 कार्ड में से जो 4 कार्ड बचे उसमें तो क्वीन है ही नहीं, तो पिकअप करने से क्वीन आने वाली नहीं है। सो इट इज़ इम्पॉसिबल इवेंट विच प्रोबेबिलिटी इज 0। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. Read the question. 12 defective pen are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. So first of all, we'll write the formula, which is number of trial upon total number of trial. Here we will write data. How many defective pens we have? 12. So defective pen 12. How many good pens we have? 132. So good pens are 132. So ये total trial will be 144 pens. 12 plus 132, 144. What do you want? Check it out. One pen is taken out at random. Determine the probability that the pen taken out is a good one. So event A will be the pen taken out is a good one. देखो टोटल ट्रायल वो होता है कि जो टोटल में से हम चीज़ें उठा रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक पेन उठा रहा हूँ, तो ऑब्वियस है 144 पेन में से उठा रहा हूँ, जिसमें 12 डिफेक्टिव है और 132 गुड पेन्स है। सो इवेंट ए इज़ द पेन टेकन आउट इज़ अ गुड वन। तो बताओ गुड पेन कितनी है? 132. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, हियर नंबर ऑफ ट्रायल विल बी गुड पेन विच आर 132 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, दैट मीन टोटल पेन्स। टोटल कितनी पेन में से मैं गुड पेन उठा रहा हूँ? 144. इफ़ यू रिड्यूस दिस, इट इज़ डिविजिबल बाई 2. सो 266 अपॉन 272. Okay, still we can reduce it by 2. So 2 33 66 and 2 36 72. Again we can reduce it by 3. Now 3 11s are 33 and 3 12s are 36. So it is our answer. Okay.
Next question is number 17. Let us read the question. A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot of one bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? Second one is, suppose the bulb drawn in first case is not defective and is not replaced. Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? First we'll write formula of the probability that we know, number of trial upon total number of trials. Then we'll write total trials. For that, let us read the question. A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. That means from 20 bulb we are drawing one bulb. जनरली टोटल वो होता है कि वो सारी चीज़ जिसमें से हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं. सो हियर वी आर ड्राइंग वन बल्ब. जो एक बल्ब उठा रहे हैं, हम कितने बल्ब में से उठा रहे हैं? 20 बल्ब में से. सो 20 bulb will be our total trial. And what you want? After probability, whatever sentence we have, that will write in statement. This bulb is defective. So here we want to find out probability that the bulb drawn is defective. So here number of trial, that will be defective bulbs. Check it out from this question. How many defective bulbs we have? 4. So number of trial will be 4 upon total number of trials are those from which we are drawing this bulb. Now this bulb we are drawing from how many bulbs? 20. So total trial is 20. Now 4 ones are 4 and 4 5s are 20. So 1 upon 5, that means 0.2 is our answer. Second statement is, suppose the bulb drawn in 1 is not defective and it is not replaced. Let us understand meaning of this question. यानी ये क्वेश्चन कैसा है कि 20 बल्ब हमारे पास है, 4 डिफेक्टिव है. अब सेकंड क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं कि 20 बल्ब में से हमने जो फर्स्ट केस में बल्ब उठाया, ठीक है, अगर वो डिफेक्टिव नहीं है तो उसको हमें रिप्लेस करना नहीं है. उसका मतलब 20 बल्ब में से अगर मैंने एक बल्ब उठाया, वो डिफेक्टिव नहीं है, तो वो बल्ब मुझे क्या करना है? साइड में रख देना है. ठीक है, वो बल्ब को मुझे यूज़ करना नहीं है. तो 20 बल्ब में से जो मैंने एक बल्ब उठाया वो डिफेक्टिव नहीं है, उसको मैंने साइड में रख दिया. तो अब मेरे पास कितने बल्ब बचे? 19. So the bulb drawn in first is not defective, is not replaced. Then total trial, that means total bulb will be 19 bulbs. अब आगे पढ़ो. आगे क्या बोल रहे हैं कि अब हमारे पास टोटल 19 बल्ब बचे. अब now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that the bulb is not defective? So our statement will be the bulb is not defective. So here I have written the statement, the bulb is not defective. देखो 20 बल्ब पहले हमारे पास थे, उसमें से हमने एक बल्ब उठाना है, लेकिन अगर वो डिफेक्टिव निकले तो वापिस बल्ब रख देना है 20 बल्ब के अंदर. लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है कि इफ़ इट इज़ नॉट डिफेक्टिव नॉट रिप्लेस. कि सपोज हमने 20 बल्ब में से एक बल्ब निकाला, वो डिफेक्टिव नहीं है, तो अब हमें क्या करना है? साइड में रख देना है. तो अब हमारे पास टोटल 19 बल्ब बचे. लेकिन वो 19 बल्ब में से डिफेक्टिव कितने बल्ब है? 4. तो 19 बल्ब में से नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हुए? 19 माइनस 4 इक्वल्स टू 15. ओके, so here number of trial will be non defective bulbs, that means 15 upon total number of trial, मतलब
ये जो हमने एक बल्ब हमें उठाना है जो नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए, वो कितने बल्ब में से हमें उठाना है? वो हमें उठाना है 19 बल्ब में से। सो 15/19 इज आवर आंसर। ओके, थैंक यू।